Good morning, beta. Good Good morning. morning, ma'am. Good morning. Good morning. How are you all? I'm fine, ma'am. Good. Fine, Very good. ma'am. How are you? Good. Good. Thank you. How many students were there in the last class? 10, ma'am. 10. Okay. So yesterday, I believe there was no problem in attempting the test, or was it? No, ma'am. Okay. Okay. Right. So today also I have given you 1 hour, complete 1 hour to attempt the test. Let me know if any problem comes. So all Ma'am, of you today are ICMPRP is not working. okay. No issue. No issue. It would be rectified. If it is not, I'll schedule the test again. Right? Maybe just a problem of this hour would be there. The moment our class gets over, it would be rectified. Right? So just try. Have you given first subject test? Whose lecture was it? Yes. Okay. Whose lecture was your first class, beta? Rahul, sir. Hello, sir. Okay, okay, fine. So you must have you tried to give test, or sir has circulated you Google Sheet? No, ma'am, we have tried, but that website is not opening. Okay, okay, okay. Yes, I am also getting a problem. I was having first class with the BBA final year, and they are also saying it would be rectified. No problem. I have given you enough time. So keep trying. If it is there, I'll see. I'll schedule the test again. I think Soma was facing some problem, but I didn't see that. He has attempted test and attendance has been marked. So whenever you are getting any message on your phone that your ward is absent, that way you are treated as absent. Otherwise, the students who are attending the class will not get this message. Please understand. If we offer any subject, you are marked absent, you will get a message. You and as well as your parents' number, the message is going. Okay. So no need to take tension. Your test, whenever I'm saying it, it is attempted. Automatically attendance is marked. If you are getting message regarding your absent, then you are not giving the test. That is the reason, right? Yes. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Yes. Yes. Anything you wanted to say, or any subject or any problem regarding my subject? Yes, anything you wanted to say? I think those catalogs, web links have been given to you, so that's why I haven't shared with you. Pradeep sir, the director of, everybody please be on mute. Yes, Soma, you wanted to say something, bache? यस मैम एक्चुअली आप मैंने सेमिस्टर वाइज कैसे क्वेश्चंस होता है एक बार कोई क्वेश्चन पेपर मैंने आप देंगे तो अच्छा होता मैंने एग्जैक्ट मैंने एक आइडिया जस्ट फॉर आइडिया See, when we are like having two midterms, please understand. Your midterm would be on 28th, 29th, 30th. Those papers, guidelines would be given to us. Since this is a time when we are not confirming whether it is online class or online exam or offline. Number one. Number two, when we talk about midterm, they are generally of 50 marks, and we have to take your half marks for this. 100 marks is internal and 100 marks is external, and out of those 50% is the minimum passing marks. Number one. As far as midterm 1 and midterm 2 are concerned, those would be having certain cases or caselets or quizzes or questions, right? As far as final exam is concerned, that would be 100 marks and it would be divided in 3 sections. Now, please understand those format keep on changing. But in case I have to code the last semester how exam happened, because that was online, we have given some cases in the 15 marks, as a MCQs in the section 1, as a short note in the section B. So like it is not the fixed format, it changes, right? Depending upon the situation. Right, bache? I'm sorry. ओके Yes. नो एक्चुअली जनरली मैंने
कैसा कैसा क्वेश्चंस होता है, एक पैटर्न समझने की, और कुछ नहीं है, जस्ट एक आइडिया। Questions may be direct and indirect. For example, if I talk about today's topic, Indian contract, I may be asking, okay, fine, define contract, explain the features of contract. Very direct question. Indirect would be that I would be giving you some statements like all contracts are based on agreement, but all agreements are not based on contract. So in a master's level, more of indirect questions are prominent. That means you need to have a clear understanding. What is contract? What is agreement? What is void? What is all that, so that you could write down the features. लिखना आपको features ही है. Those conditions as per section 10. But indirect question में you have to explain the statement also. So in that way it would be more of indirect questions, more of case studies and caselets. Yes, beta. Okay, thank you, ma'am. Okay. Anything else you wanted to ask, or any problem or any concern? Please ask. Yes. Clear to all. Okay. So let's talk about today's PPT. We are going to discuss the remaining part. Offer and acceptance would be over today. I'll be starting consideration, right? Let me share my screen with you. Okay. Are you able to see this, bache? We have Yes, ma'am. discussed. Okay. So please understand, we were on to this point, right? That when any letter is posted by M on 1st June, he is going to sell his car. That reaches on 3rd of June. N is accepting that letter and posting it on 5th June. So M has a time period from 1st to 5th to revoke it, to cancel it. And letter reaches to M by 7th. N has a right to cancel the acceptance before 7th. That means cancellation of offer and acceptance is very much valid and very much legal. Look at this example which I wanted to tell you. Understand this. There is one party who is going to sell his house for this amount, right? B and A are into a contract. A accepted this letter by the post. On the very next day, A has sent a telegram. No, I don't want to sell it. So he wanted to cancel, which reached B before the letter. Please understand, B is going to sell a house to A. A is sending that I am not going to sell you. Is the revocation of acceptance valid? What would be the effect if both the letters of acceptance and the telegram of revocation reaches at the same time? So there are two situations. You have to reply one by one. B केस समझिए, B ने A को एक घर बेचना है 50,000 का. A is accepting this offer, right? But very next day A एक सेंड करता है टेलीग्राम कि नो, जो एक्सेप्टेंस है वो बी के पास पहुंच रही है बिफोर द लेटर जो उसने कैंसिल की थी. तो क्या ये ए की एक्सेप्टेंस वैलिड मानी जाएगी जहां पे बी ने उसको रिवोक कर दिया? और अगर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस और टेलीग्राम ऑफ रेवोकेशन दोनों बी को सेम टाइम पे मिलते हैं, तब क्या होगा? तो क्या बी ए को चैलेंज कर सकता है कि तुझे तो मेरा अब घर लेना ही पड़ेगा? Now tell me first answer. Is the revocation of acceptance valid? Yes, somebody please reply. Yes. B ने एक घर बेचना है A को. Please understand. Right? That deal is for 50,000. A ने एक्सेप्ट कर लिया और लेटर भेज दी. बट A ने अगले दिन दोबारा लेटर भेज दी, नहीं मुझे नहीं लेना तुम्हारा घर. तो A की दो लेटर्स हो गई. एक लेटर जो एक्सेप्टेंस की थी और दूसरी लेटर जो रेवोकेशन की थी. तो रेवोकेशन वैलिड है? अगर बी को ये वाली लेटर पहले मिलती है, ये नहीं मिलती, तो क्या बी मान जाएगा ठीक है?
नो मैम, नो मैम, क्यों? क्योंकि उसका तो एक वैलिड पीरियड होगा कि इतने वक्त तक उसको लेना है, तो उसके अंदर अगर वो मतलब रिवोकेशन करेगा तो कैसे, मतलब ये तो वैलिड नहीं है आई थिंक। ओके, एनी अदर? नहीं नहीं, ओके ओके, एनी अदर स्टूडेंट हु वांट्स टू ट्राई, प्लीज अंडरस्टैंड। मैम बी एक के ने बाद ए को घर बेचना है, ए ने दो चीजें की, अगले दिन एक तो लेटर निकाल दी, दिस इज कॉल्ड लेटर, प्लीज अंडरस्टैंड। दूसरे ही दिन टेलीग्राम निकाल दिया कि नहीं मुझे नहीं खरीदना है तुम्हारा घर। टेलीग्राम पहले पहुंचा, टेलीग्राम पहले पहुंचा लेटर से। तो मैम ये प्लीज लोग कैंसिल रिप्लाई। कर सकते हैं ना? मैम ये लोग कैंसिल कर सकते हैं ना, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास कोई एक्सेप्टेंस नहीं है कि उसने बोला है कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ तुम्हारा ऑफर, लेकिन उससे पहले उसके पास कैंसिल का आ गया है, तो वो कैंसिल कर सकता है इस ऑफर को। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सोमा यू से बेटा। हाँ, अगर पहले मतलब एक्सेप्ट का लेटर नहीं आया तो कोई वैलिड नहीं है, तो सही है। जो पहले पहुंचेगा उसका ही वैलिड माना जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यू आर राइट। आई होप इट इज क्लियर नाउ। म्यूट योरसेल्फ बच्चे। अगर ठीक बी के पास ये वाली लेटर टेलीग्राम पहले पहुंचता है तो दिस एक्सेप्टेंस इज वैलिड, रेवोकेशन को वैलिड बोला जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड, इज द रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वैलिड? सर्टेनली यस, because B has received telegram first, then the letter. I hope the first question is clear to you all. कि revocation Yes, of ma'am. acceptance is valid because B has received the telegram first. Please understand. B has received the telegram first and letter has not reached yet. So telegram will be treated as valid. दूसरा, अगर दोनों ही एक साथ पहुंचते हैं तब क्या होगा? मान लीजिए टेलीग्राम, जस्ट ए मिनट, यस, मान लीजिए दोनों लेटर एक साथ पहुंचती है तब क्या होगा? एनीबडी हु वांट्स टू रिप्लाई? मैम इफ तब बो बी के ऊपर डिपेंड करेगा कि बी उसको रिवोकेट करता है एक्सेप्ट करता है। ओके, वेरी गुड। एनी अदर स्टूडेंट? मैम तब तो फिर बी उसको मतलब वो कर सकता है कि तुमने एक्सेप्ट भी, मतलब दोनों एक साथ पहुंचे तो तुम ना तो रिवोक कर सकते हो, अगर वो चाहे तो उसके ऊपर केस कर सकता है कि क्योंकि एक्सेप्टेंस ऑलरेडी उसके साइड से जा चुकी है। अगर बी चाहता है कि वो मतलब नहीं, मतलब उनको कॉन्ट्रैक्ट उससे बेटर मिल रहा है, तो फिर वो कह सकता है कि तुम रिवोक कर दो इसको। बिल्कुल। दोनों लेटर में से बी कौन सी फर्स्ट लेटर पढ़ेगा? प्लीज अंडरस्टैंड, दैट विल डिसाइड। एंड नाउ इट इज वेरी टफ टू प्रूव कि बी ने एक्सेप्टेंस लेटर पहले पढ़ी है या टेलीग्राम पहले पढ़ा है। बी के हाथ में अगर टेलीग्राम पहले आ गया तो वो कैंसिल हो जाएगा, वो वैलिड एक्सेप्टेंस है। अगर उसके हाथ में लेटर पहले आ गई जिसमें उसने एक्सेप्ट किया है तो वो माना जाएगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन बी एज टू व्हाट ही वांटेड टू हैव इट। ओके, लुक एट दिस फर्स्ट क्वेश्चन। Yes, the revocation is very much valid, very, very much valid, because the letter of telegram is reaching to the first level. अगर दोनों लेटर एक साथ पहुंचती हैं, then in that case it is exactly what B is reading first. Very, very important. Please understand. Our law says if B reads the telegram, then revocation is valid. If it is letter first, then revocation is not possible. Understand this. Yes, मैम एक क्वेश्चन करूँ? बिल्कुल अगर बिल्कुल बी बिल्कुल। बी ने दोनों ही पढ़ा, पर उसको जो सही लगा उसने किया, वो भी तो एक्सेप्ट होता है ना? मतलब हाँ, दोनों दोनों एक साथ पहुंचा और दोनों बाद में कोई एक पहले पहुंचा, कोई एक बाद में पहुंचा, पर दोनों पढ़ के जो बी एक्सेप्ट करेगा वही तो आपका मतलब वैलिड होगा ना? लॉ बिल्कुल वही वैलिड होगा क्योंकि हम चैलेंज नहीं कर सकते बी को। दोनों लेटर हाँ, एक साथ पहुंच रही हैं, बी ये हाँ, कह दे कि मैंने तो रेवोकेशन वाला टेलीग्राम पहले पढ़ा है, तब ठीक है, लॉ कहेगा ठीक है आपने रेवोकेशन पढ़ लिया देन द एक्सेप्टेंस, तो ये रेवोकेशन वैलिड है। बी कहे
कि नहीं नहीं मैंने तो एक्सेप्टेंस वाला पहले पढ़ा है, मेरे पास तो दोनों इसी डेट पे पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस वो रजिस्ट्री डेट दोनों एक लेटर एक साथ पहुंची, वो सारे प्रूफ लग गए, तो बी के पास एक कैपेसिटी आ गई जैसे आप लोग बोल रहे थे। तो पॉइंट ऑफ रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। लॉ क्या कहता है कि रीडिंग विच डॉक्यूमेंट हैज बीन रेड बाय द बी। अगर बी ने टेलीग्राम पहले पढ़ लिया तो इट इज फाइन, इट इज वैलिड। अगर एक्सेप्टेंस पढ़ लिया तो वो कैंसिल नहीं कर सकता, रेवोकेशन इज नॉट पॉसिबल। रेवोकेशन मीन्स कैंसिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। राइट बच्चे? यस मैम। यस मैम। Okay, okay. Now, this was all about your offer and acceptance. Now we are moving towards very important topic, consideration. Something in return. That means that there should be any value. If we talk about any gift, or if we talk about any money, or if we talk about any transaction which is not in the terms of affection or trust or money value, then that contract has to be separated. फॉर एग्जाम्पल, आज एक फादर अपनी डॉटर को मैरिज पे कुछ एफडी देता है, so there is that contract is not backed by consideration, it is not a valid contract. डॉटर के पास ये राइट नहीं है कि आपने मेरी दीदी को ये वाली एफडी इतनी की दी थी, मुझे इतने की दी है, आई एम चैलेंजिंग यू। नो, something in return must be there to make the contract valid and legal. If it is not so, then that contract is not valid in the eyes of law. Please understand. Please understand. Section 2 subsection D, it is defined as consideration is amount. अगर आपको लेमैन की जार्गन में बात करना है तो it is amount or money that is involved in the contract. Very very simple thing. कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो लेना देना पड़ेगा, अमाउंट, करेंसी, ड्राफ्ट, जो भी, that is known as consideration. How law is defining? Please understand. When at the desire of the promisor or promisee or any person has done or abstained from doing, does or abstains from doing, promises to do or to abstain from doing such act, abstinence or promise is called consideration for the promise. तीन तरह के हमारे सेंटेंसेस इसमें यूज हुए हैं, एक पास्ट, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर। अगर प्रोमिसर या प्रोमिसी कहता है कुछ काम करो या कुछ ना करो, उसको करवा लिया कोई काम या उसको रोक दिया किसी काम से, या वो करता है या वो करने से रोकता है, या वो आगे फ्यूचर में करेगा या आगे फ्यूचर में रोकेगा उसको, उस काम के बदले, उस प्रॉमिस के बदले जो भी अमाउंट दी जाएगी, दैट इज कॉल्ड कंसीडरेशन। दिस इज समथिंग द लीगल लैंग्वेज वेयर वन इज टॉकिंग अबाउट पास्ट वर्क, present work and any work of the future nature, when at the desire of the promisor or promisee or any other person has done his work, has already been done, it is past, काम करवा लिया है या काम के लिए रोक दिया है, ठीक है, काम करता है या काम के लिए रोकता है, प्रॉमिस करता है कि आगे करूंगा और आगे नहीं करूंगा, इन सारे कामों के लिए एनी एक्ट, एनी एब्स्टिनेंस और एनी प्रॉमिस, काम करवाना या रोकना या कोई प्रॉमिस लेना is called consideration for the promise. That means something he is promising, I will give you for this. तो मेरा ये काम कर दो, I will pay you this. Okay, this is consideration. So paying capacity by the promisor is known as consideration, right? Yes. Any doubt in the meaning? Yes. No. Any doubt? Okay. So I believe any party who is doing something and receiving something is known as consideration. So consideration in a plain legal jargon, it is a gain of the payment or money or currency or something that is involved for the value or the work, either done or does or to be doing. कोई भी काम ऐसा जिसके बदले में आप कुछ दे चुके हो या दोगे या दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड कंसीडरेशन, राइट बच्चे? यस मैम। ओके, Yes, ma'am. गुड।
Now, what are the legal rules of consideration? Very, very important. Please understand. Consideration must be always provided at the desire of the promiser. जो promise कर रहा है, very true. Promiser ने अगर कोई promise किया है तो वही बताएगा वो कितना amount offer करेगा. It must be given by the promiser. Promiser is the person who wants another person to do something. तो इसमें दो parties आएंगी, एक promiser और दूसरा promisee. Promiser वो person है who is offering something, who is offerer. क्योंकि उसने कहा कि ये काम करने के बदले मैं तुम्हें ये दूंगा तो प्रोमिसर हो गया, कुछ देगा, वो कुछ ऑफर करेगा, कुछ अमाउंट, कुछ गुड्स, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ ड्राफ्ट, कुछ शेयर, whatever that is called consideration. So promiser अगर कोई भी काम करवाने के बदले कुछ भी कहता है तो that must be initiated, right? तो आप जैसे शॉपकीपर के पास जाते हो, आपने उसको बोला कि आई नीड ए क्लोथ विद इन दिस रेंज. Now please understand, you have promised I want such cloth in this very price. So promiser is going to offer any value to the promisee. और promisee क्या है? Any person who has to do that work. जो promiser ने कहा कि काम करोगे ये मैं तुम्हें दूंगा, promisee जो काम कर रहा है और जिसको मिलेगा. So promiser is who is offering the value, promisee is who is receiving the value, right बच्चे? Yes बेटा. Yes ma'am. Yes, ma'am. It may be past, present or future. Certainly any work which has been done or abstained, any work which he is doing or abstaining, or any work he says you have to do it in the future or not to do in the future, anything may be related to consideration. It is very much valid. Work should not be like it is present only. Any work which you have done in the past will be taken as a consideration only. कोई काम आपने पीछे कर दिया, जैसे आज कंपनीज डील करती हैं कि यू टेक द प्रोडक्ट टुडे, पे अस आफ्टर 6 months. वैलिड है. अभी वो प्रोडक्ट लेके घर आ गया, यूज कर रहा है, बट 6 महीने बाद पेमेंट करनी है. So it is a consideration of past nature. Something has been done in past, payment has been done in today's time. Right? Clear? It need not to be adequate. It must be some value. ये नहीं कहता लॉ कि उसका आज अगर आपने कोई लैंड है, आपको पता है उस लैंड की वैल्यू 2 लाख है, आपने अपने गार्डनर को दे दी या आपने अपने सर्वेंट को दे दी 20,000 में, ठीक है, वो भी कंसिडरेशन है. Law is not going to compare the value of asset or value of work with the value of money. It must be even a small value. जैसे अब प्रशांत भूषण को फाइन लगाया है, कहने को तो 1 रुपी है बट फाइन, राइट? दैट इज इन्वॉल्व. वो फाइन भी भरेगा, वो अपॉलॉजी लेटर भी लिखेगा और कंसिडरेशन दे दी उसने. लॉ ये मानता है कि कुछ भी वैल्यू हो, जरूरी नहीं है कि वैल्यू मस्ट बी एट मैच विद द property or the document or the work. Value may be higher, value may be lesser, but some value must be there. Value नहीं है, so that is not a contract, that is not a consideration. So value must be there in the contract all the time. No matter that value is minimal, moderate, high, no. आज आपसे जो है, अगर आपको कोई शॉपकीपर है, आप जैसे मैं आई बीन टू हैदराबाद, लेट मी टेल यू माय केस. हैदराबाद इज नोन फॉर ऑर्नामेंट्स, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट दो पर्ल ऑर्नामेंट. वहां पे एक शॉप पे चले जाओ, यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश. आई परचेज्ड ए सेट जो 20,000 का बोल रहा था, ही कम डाउन टू 5,000. आई आस्क्ड कि आपने ये स्टार्टिंग में इतना बोला, कहते कोई जितने भी हमारे पास टूरिस्ट आते हैं वो नहीं चेक कर पाते कि ये ओरिजिनल सी वाला पर्ल है या नॉर्मल पर्ल है. अब आपको जो मैंने 20,000 वाला बोला था वो आपको मैं इस तरीके से चेक करके बताता हूँ. अंडरस्टैंड दिस. कॉन्ट्रैक्ट है, वैल्यू कम, प्लीज अंडरस्टैंड, दैट इज ऑल्सो ए कंसिडरेशन. कुछ भी अमाउंट अगर आप देते हो, दैट इज कंसिडरेशन, राइट? प्रशांत भूषण फाइन इज वेरी मच एग्जाम्पल टू दिस कंसिडरेशन. कोर्ट को कुछ बोला उसने, सुप्रीम कोर्ट को ऐसे ऐसे बयान दिए, कोर्ट को लगा कि ये तो तौहीन हो रही है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन हो रही है, और अगर एडवोकेट ऐसे बोलेगा तो लोग क्या बोलेंगे.
तो वो सारा मैटर उसने सुना, जजेस ने उसको फाइन लगा दिया। ₹1 फाइन इज वेरी मच लेस, बट दैट इज कंसिडर्ड एज ए वैलिड कंसिडरेशन। Value is important no matter the quantum of value. Please understand, it may be small value, but that is valid consideration. Is it clear, बच्चे? Yes, ma'am. Okay. Yes, sir. Yes, It ma'am. must be real, certain and possible. Yes, consideration ऐसा नहीं होना चाहिए कि जरूरी नहीं है कंसिडरेशन अमाउंट में ही हो, कोई शेयर हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि आपने उसको वो शेयर सर्टिफिकेट दे दिए जो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही आज के टाइम पे, which is not possible to have a cash value. So consideration must be real. It should not be just on the paper of accounting words. No, it must be really transferred. If it is not real, then in that case it will not be treated as valid consideration. ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, बी कह रहा है कि आई एम गोइंग टू सेल माई कार, बी कह रहा है आई विल परचेज एंड आई विल गिव यू शेयर सर्टिफिकेट ऑफ दैट वैल्यू। ए एक्सेप्टेड। ए ने जब शेयर सर्टिफिकेट लिए, जब उसने बैंक में जाके उसको कहा कि ये बी के शेयर सर्टिफिकेट मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दो, बैंक सेड नो, ये तो कंपनी अब एग्जिस्ट नहीं करती। नाउ अंडरस्टैंड, इट इज नॉट ए रियल कंसिडरेशन। Any fake currency or any fake note or any amount which is not really prevalent is not considered as valid consideration. So consideration must be real, it must be specific amount, and that must be able to in cash or generate cashes. तो आप कोई सिक्योरिटी, कोई शेयर, कोई बॉन्ड देते भी हो तो ये बहुत पॉसिबल होना चाहिए कि उसको कैश मिल जाएगा उसका, राइट? इट मस्ट नॉट बी इलीगल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ऐसी कोई चीज आप रिटर्न में नहीं दोगे विच इज अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ आईपीसी। अब आप कहेंगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप अपना फ्लैट बेच रहे हो और आप उसको कह रहे हो कि आपको 6 मंथ तक मुझे ड्रग्स सप्लाई करना है, समथिंग दैट इज आईपीसी प्रोविजंस आर ब्रोकन, वायलेटेड। ऐसा कुछ अगर रिटर्न में आपको मिल रहा है तो दैट इज इलीगल। कंसिडरेशन मस्ट बी लीगल। अब आपको पता है कि जैसे अगर आपने कोई उड़ीसा के या बिहार, झारखंड के कुछ रूरल पार्टीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो लेडी इतनी सिंपल है, उसको पता नहीं है, आपने उसकी जमीन का सौदा कर लिया है। अब आपको जो नोट नहीं चलते हैं 500 के, 1000 के, आपने उसको वो अमाउंट दे दिया, प्लीज अंडरस्टैंड इट इज इलीगल करेंसी नाउ। So that is not right. Consideration must be very much real. It should not violate the provisions of IPC. Yes. Yes, beta. Any doubt? No, Any ma'am. doubt? No, ma'am. Is it clear to all? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, okay. Okay, great. So consideration, I'm going to ask you few questions about it, reply, and then we will be continuing the another topic. Just a minute. Now listen the situation. A and B enters into a contract which are of 3 classification. First classification, A is going to offer B a set of pens and B is going to offer a set of utensils. Tell me, is it having a valid contract and valid consideration? Somebody please reply. Situation number 1. A is going to offer a set of Parker pen and B is going to offer a set of utensils. Is it a valid consideration and a valid contract? Yogesh? Yogesh? Are you there, बेटा? आप मुझे बताओ, इस सिचुएशन में इज इट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? मैम एक बार वापिस से रिपीट करना। ए और बी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ए जो है बी को पार्कर सेट का पेन का सेट देगा, बी जो है ए को यूटेंसिल सेट देगा। तो टेल मी, इज इट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड वैलिड कंसिडरेशन? यस। व्हाई?
क्योंकि ए ने बी को जो अभी आपने बताया ना वो पार्कर पेन दिया है, उसके बदले में वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, वैलिड ही है मैम ये। तो इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या नाम है बच्चे? वैलिड कंसिडर्ड कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, वैलिड कंसिडरेशन है, बट इस कॉन्ट्रैक्ट को क्रॉस ऑफर बोलते हैं, जब दोनों एक दूसरे को कुछ ऑफर कर रहे हैं। दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर। इट इज लाइक ए एक्स, ए ने बी को ऑफर किया, बी ने ए को ऑफर कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी वैलिड। वेरी गुड, वेरी गुड। I hope this situation is clear. Anybody who wants to counter? Yes. Yogesh is very right. Thumbs up for Yogesh. Yes. Any student who has a doubt कि ये valid नहीं है? Let me explain again. Clear to all? यस मैम। मैम Okay. मेरा डाउट नहीं है, पर valid है। मैं एक चीज, हेलो, Yes, Soma, say. सुष्मिता कुछ बोल रहे थे। हाँ बोलो। नहीं नहीं, हमको कुछ नहीं बोला। अच्छा, मैं एक चीज जस्ट मैंने क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। अच्छा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है तो ये वैलिड है, पर कॉन्ट्रैक्ट का सेम अमाउंट का होता है ना? ऐसा भी होता है कि कोई 100 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट करे, कोई 200 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट करे। जैसे कि आप जैसे बोल रहे कि पार्कर पेन, उसका तो प्राइस बहुत कम है, पर आप जो ऑपोजिट बी पर्सन जो दे रहे हैं उसका तो प्राइस थोड़ा हाई है। तो ये दोनों के बीच जो मतलब दो डिफरेंस अमाउंट है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है? ऐसा कुछ होता है? दिस इज अ बिल्कुल वैलिड। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि लॉ कहता है एनी अमाउंट, डजंट मैटर कि कोई ऑब्जेक्ट आपने लिया है, सस्ते में ले लिया है, कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे आई गिव यू प्लेन एग्जांपल, देयर आर सर्टेन सिचुएशंस व्हेन पार्टी हैज टू गो टू अब्रॉड परमानेंटली एंड दे आर सेलिंग देयर हाउस एट ए मिनिमल कॉस्ट। कर सकते हैं। आज उसको पता है कि मुझे 2 मंथ्स के बाद मेरा पीआर आ गया है, मुझे बाहर जाना है, राइट? तो उसने अपना घर जो है डबल स्टोरी का, जो इसकी मार्केट वैल्यू इज 50 लाख, वो अगर 20 लाख में बेच रहा है तो कंसिडरेशन है। लॉ ये नहीं कहेगा कि आपने इतने सस्ते में क्यों बेचा। अगर कंसिडरेशन बिल्कुल ही नहीं है तो जिस पार्टी को भी बेच रहा है वहां पे कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। Consideration may be of a small value. Parker set may be 500 rupees and utensil set may be 300 rupees. But if it is a consideration of a small value, it is a valid contract. जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन आपके और प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ही हो, उतनी ही हो, उससे कम हो सकती है, उससे ज्यादा हो सकती है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ हायर प्राइस. There are certain situations when we are paying higher price of the product than the MRP. Let's take example. Coca-Cola normally cities में 20 rupees की available है, but when you go to airport, it is available at 50 rupees and you pay it. It is a consideration. कंसिडरेशन में भी स्मॉल। आपने किसी एक दुकान पे गए, आपने कहा कि आपकी तो ये ठंडी नहीं है, वो कहते हैं 15 की ले लो, मे बी स्मॉल, प्रोडक्ट इज सेम। तो कहीं सिटी में ले रहे हो तो 20 रुपीज, कहीं आप एयरपोर्ट पे ले रहे हो, कहीं आप ऐसे स्टेडियम में जा रहे हो जहां पे द कॉस्ट इज वेरी हाई, वहां पे वो चार्ज करते हैं। आप उनको बोलिए कि आपने भैया एमआरपी से ज्यादा चार्ज कर रहे हो, एलसीयू कहते कर लो, हमें यहाँ एयरपोर्ट का कॉस्ट देना पड़ता है, विल जस्टिफाई। And all those cases where consideration is charged high is valid in the eyes of law, because authority, airport authority ने जो rule बना दिया, that is fine. But उनमें जो आप चीजें ले रहे हो या उनमें आप जो खा पी रहे हो, those rates are quite high, but they are same in terms of competition. ये नहीं है कि आपको एक शॉप से 50 रुपीज की कोका कोला मिलेगी, दूसरे में 70 की मिलेगी। Please understand. Now, consideration may be of any value, rather it may be a small value, moderate value or higher value also, but that is valid, that is right. ओके मैम। Yes, Sushmita, you wanted to say something? No, ma'am. Okay. Is it clear? Situation number 2 now. So now that offer is, योगेश याद रखना कि जब ऑफर के बदले ऑफर हो रहा है तो that is called cross offer. Okay. So second situation, A is selling B 3 items. First is card, second is Parker pen, and third is his football.
वो कह रहा है कि आपको जो है मैं तीनों चीजें तब दूंगा जब एक प्रोडक्ट की प्राइस जो है 1000, बी जो मैं आपको आइटम दे रहा हूँ 500, सी फ्री है। लेने आपको तीनों ही पड़ेंगे, पे मुझे 1500 ही करना पड़ेगा। टेल मी, इज इट अ वैलिड? यस। वेरी मच वैलिड। क्यों? क्योंकि जो ए है वो ऑफर कर रहा है, जैसे कि नॉर्मली आप शॉप करने भी जाओगे कि ये दो प्रोडक्ट लोगे ये फ्री है, तो ये ए पर्सन ऑफर कर रहा है तो बी को सिर्फ 1500 देके ही लेना पड़ेगा, बस उसका एक पैसा भी कम नहीं, एक पैसा भी ज्यादा नहीं। तो दिस इज अ वैलिड, एकदम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कि ये वो ऑफर कर रहा है, वो ये 1500 देके वो जस्ट बाय कर रहा है। ओके, योगेश आप बताओ बेटा। जागृति आप बताओ बेटा। जागृति, मैं बताती हूँ रिगार्डिंग द फर्स्ट प्रोडक्ट। जागृति, इफ यू वांटेड टू टेल समथिंग प्लीज बच्चे टेल। एम आई ऑडिबल टू ऑल? दीपक? यस मैम, यस मैम। यस मैम। ओके, जागृति, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। एक वो जो है आपको पार्कर सेट दे रहा है 1000 रुपीज का, दूसरा जो है वो आपको एक कार टॉय कार दे रहा है 500 की, और थर्ड वो फुटबॉल दे रहा है जो कि फ्री दे रहा है, बट लेने आपको तीनों ही पड़ेंगे। यस मैम, यस मैम। यस मैम, वैलिड है या कॉन्ट्रैक्ट। आप बताओ तीनों प्रोडक्ट में जैसे 1 2 3 ये वैलिड है और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? यस नो मैम। ओके, मिताक्षी यू से बेटा। मैम एक्चुअली है ना, लाइक आप किसी पे शॉप पे जा रहे हो पर आपको एक ही चीज रिक्वायर्ड है, अब आपको तीनों चीज एक साथ ऑफर कर रहे हैं तो आप क्यों लोगे? लाइक आपको तो एक ही चीज चाहिए ना, आप पे भी सिर्फ एक का ही करोगे ना, वरना वो लास्ट वाली चीज फ्री है पर आपको बट सेकंड में लाइक फुटबॉल लाइक वो नहीं है ना, तो आपको नीड नहीं है तो आप क्यों उस पर एक्सपेंस करो? वो कह रहा है फुटबॉल फ्री है, बट मैं दो प्रोडक्ट आपको ऐसे नहीं बेचूंगा। आपको मेरे से पार्कर पेन लेना पड़ेगा 1000 का, और अगर आप अलग अलग लेना चाह रहे हो तो फिर पार्कर पेन ले जाओ 1000 का। बट हाँ अगर आपने पार्कर पेन भी लिया और टॉय भी लिया तो टॉय के साथ मैं आपको फुटबॉल दूंगा। हाँ मैम, तब वैलिड है अगर वो अलग अलग लेना चाह रहे हैं तो। Yes. Now let me tell you the complexity of this situation. Law ऐसा नहीं मानता। As far as Parker pen is concerned, consideration is involved. It is a valid. As far as car toy is concerned, 500 it is valid. But football case cannot be challenged in the court. चाहे उसने तीनों आइटम मिलके दी हैं, तो आप अगर फुटबॉल खराब आ जाए ना, घर पे आके आप उसको बोलो कि भैया मैं आप वापस करके मुझे कुछ दे दो, वो कहेगा मैंने आपको फ्री दिया था। तो यानी कि शॉपकीपर ही नहीं कुछ देगा, लॉ भी कुछ नहीं देगा। लॉ विल एडवोकेट कि नो 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 नो, देयर इज नो कंसिडरेशन, यू कैन नॉट चैलेंज ए शॉपकीपर फॉर द फुटबॉल। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अदर टू कॉन्ट्रैक्ट्स आर चैलेंजेबल, जिसका आपने प्राइस पे कर दिया, घर आके आपका पार्कर पेन नहीं चलता है तो आप शॉपकीपर के पास जाओगे, वही चेंज कर देगा। इसका मतलब है ही इज स्केयर्ड ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। आप वो चेंज नहीं करता, आप कहते हो कि मैं आपको कंज्यूमर कोर्ट पे लेके जाऊंगी और मैंने आपको प्राइस दिया है, तो बिल वो सेट और वो ऑल आर चैलेंजेबल एंड सुएबल। पर प्रॉब्लम कहां आती है, जहां पे उसने कुछ पे नहीं किया है तो ना तो शॉपकीपर मानेगा ना ही लॉ मानेगा, चाहे वो ऑफर में ही था। आपने कभी ऑफर की आइटम रिटर्न करने जाओ, वो कहेंगे नो नो नो, दैट वाज एन ऑफर, वी कैन नॉट टेक द रिटर्न एंड गिव यू अलाउ टू बाय समथिंग in that place. It is not possible. So you cannot have a right to challenge because that is given you as a free by the seller. So you do not have a challenging right or suable right. Yes, any doubt? No ma'am. Clear to all? ये situation समझ आ गई? So this is nothing ma'am. but the consideration. Okay? Okay beta? Yes ma'am. Okay, so you please take care. We'll meet next week. Till then, you please attempt your test, right? If any problem comes, just let me know through my personal message.
We'll meet again in the next week. Till मैम then, आज please revise. IMCRP वर्क नहीं कर रहे हैं. अभी अभी एक बार ट्राई करो. आई थिंक इट इज डन, इट इज रिजॉल्व. जब तक आपका टेस्ट ओपन है अभी 1 आवर के लिए, नहीं होता है 1 आवर में, जस्ट लेट मी नो, आई शेड्यूल अगेन. ओके, अदरवाइज गूगल शीट इज ऑल्सो द प्रोबेबल सोल्यूशन. आई विल डू दैट. ओके ओके बेटा, थैंक यू Thank सो you, ma'am. मच. थैंक यू. ओके ओके. पे नहीं हो रहा. Okay, Soma, thank you, beta. You please log into IMCRP and let me know if any problem is coming. Okay. Am I audible, Soma? Soma, are you there, बच्चे?